So today we are discussing the financial goal setting. The importance is when we know where we want to reach, the journey becomes much easier. And the beauty of the plan is that our experience of the life changes. When we know where we want to reach, then how we will reach, we will start thinking that way. So when we have the clarity, so the things will fall on its place. Set the financial goal to get the clarity. A financial goal provided the clear direction and purpose for your financial decisions. So every day we are dealing with some or the other decisions. So there is always a struggle on what to spend, what to save, how much to invest, or all these things. But once we have the financial plans and we have our priority list, we got so much clarity. So the internal this dilemma got sorted, and then we get the motivation because our goal inspire us to make smart choices, and we are accountable also because goal keep us accountable and track with our financial plans, and they gives us security because ultimately they will be enhancing our financial security, and then they will be giving us the peace of mind. So there are goals. So we divide them in finance in three parts, like short-term goals and medium-term goals and the long-term goal. Short-term are like anything that you want to achieve within 1 or 2 years. Medium terms that you want to achieve 3 to 7 years from now. And long terms beyond 7 years, we consider the long term. So this is actually a great way to have to see our goals, and actually on based of this, asset allocation is also dependent where you will be investing. That is the next step. First we have to have the knowledge ki where we want to go, how much we will be needing the money, and then the next step we call which investment option we should go for. So when we are having the priorities, the timeline, accordingly we can take the risk and we can have different assets as well. So now we have to do the task. So if you're having the Excel sheet, you can edit in the Excel sheet, or if you're not having Excel sheet, you can just simply write down on the pen and on your notebook. So this is the goal prioritization matrix that I have made for myself. So here the first column is short-term need less than 2 years. So first column is the needs. These are the high priorities. Actually, needs are non-negotiable. You have to have them. You can't negotiate on them. So like emergency fund, we all need to have. And then I want to set up my online website and everything, and offline also I just want to set up a small thing. And then I want to buy my parents health insurance. So these are the high priority thing. I need to have money for them first. And then yeah, my want is I want to go for vacation, domestic vacation. And there are some dreams also ki, I want to have learn some salsa with my husband if I get time and resources. So in Hindi also we said na कि जरूरत, चाहत and हसरत. So these three things are the कुछ चीज हमारी जरूरत होती है, हमें उनके लिए खर्चा या जो भी है करना ही पड़ेगा. We can't skip those things. एंड देन सम आर आवर वांट्स, लाइक हमारी चाहते हैं कि हाँ हमारे पास अगर पैसा हुआ, टाइम हुआ तो हम ये करेंगे. फिर हमारी हसरतें होती है, हमारी एस्पिरेशंस कि हाँ मतलब आई रियली वांट टू डू दैट, बट हाँ वो उतना प्रायोरिटी में नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हमारे पास टाइम होगा, मनी होगा, तो वी विल डू दैट. So similarly, you have to make your this goal matrix. Same for the short term and medium term also. So for me, there is nothing urgent in the medium term. So for me, it is like blank. And for the wants, I have put here, I want to go foreign vacation every third year. Then we have to buy a car also. So these are our wants. And then we are having a home loan as well. So we want to pay it off earlier if it's possible, if our all goals are get aligned. This is not our priority, but if we are having enough fund, so we would want to close off our home loan in 5 to 7 years. So that's why I have written in the aspirations. It's not urgent and not so important, but yeah, if we are having money and resources, so we will be paying off our home loan. Similarly, I'm having the long-term goal, like my elder one is 8 years. So for his higher education, I will be needing fund after 10 years. For my younger one, I will be needing fund after 17 years.
So these are my long term goals. For my retirement also, we will be needing the fund for my kids marriage, for their post graduation, and then I have some aspiration of setting up some nice business and charity. So these are dreams. These are the low priority things, so that's why I have put them in the down. So I'm giving you 2-3 minutes. You also just write it down now only. Write down, or if you have any question, you can unmute and ask me. If you didn't understand this part, you can unmute and ask me, or just write it down. If you can't write down all, just put at least one goal in each of the column, so that you get the some clarity. You have some clarity. Because when we do this exercise, after that we are going to do the next exercise that is going to build over it only. And in next session also we will be doing one exercise, so that is over and above this and the next exercise that we are going to do. So these are the important things. If you are not if you are having any doubt, you can ask me. You can unmute and ask me, or if you are clear, just do it or do the exercise. You can just write 1 1 or 2 2, whatever you are thinking, you are understanding. श्वेता, सब ये आपने जो लिखा ना, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और मीडियम टर्म गोल वाला, उसमें लिखना है ऐसे सब गोल में। हाँ, सब गोल आपने लिखना पहले भी किया था ना वैशाली, ये वाला। हाँ, तो आपके पास सेम होगा ना, आप उसको ओपन कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला भी एक्सरसाइज करेंगे। एक्चुअली मेरा लैपटॉप में है, और ओके, अभी तो मैं नोटबुक लेके बैठी थी। ठीक है, तो आप नोटबुक में एक बार लिख लीजिए। अभी हो क्योंकि मेरे सकता है। हस्बैंड के साथ ही करना है, हस्बैंड के साथ करना है सारा। हाँ, हस्बैंड के साथ करेंगे तो अच्छा है, बिकॉज दीज आर द फैमिली गोल्स। मतलब हम अकेले ही सारा कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, यू कैन हाँ, स्टार्ट। वही आप तो। थोड़ा थोड़ा जो समझ आ रहा है आप करिए, फिर साथ में मिलके अपने हस्बैंड के साथ करिए, तो दैट विल बी बेटर। बिकॉज जो भी गोल्स होते हैं हमारे सारे फैमिली के होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वी आर गोइंग टू पुट द अमाउंट। तो खुद करने के लिए ना बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, जब हम साथ में करते हैं वी हैव द मोर क्लैरिटी। So Shikha, are you done? Have you written something? I written short-term goal Okay. only. I have some confusion about Okay, tell that. me. हाँ, मैंने मतलब जैसा आपने लिखा है ना, तो मैं भी कुछ वैसा ही अभी तो मैंने वैसे सोचा ही नहीं है, तो एकदम से माइंड में वो चीजें नहीं क्लिक कर रही है। बट मुझे लग रहा है जैसे हाँ, कभी इमरजेंसी कुछ भी हो तो उस समय के लिए। और एक मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक बिजनेस ऑनलाइन ही कुछ ऐसा सेटअप हो जिससे मुझे मेरा अर्निंग का हो। जैसे मेरा ग्राफिक का है, तो मैं उसको भी आगे कि वो मेरा एक अर्निंग सोर्स बने, और पेरेंटिंग का भी दो मैं सोचती हूँ कि किसी के भी उससे मेरे को अर्निंग मिले। और Yes. मीडियम टर्म अब उसका लिख रही हूँ कि मुझे इतना Just think. Then I think education, retirement, marriage, these are, I think, हाँ some of the goals that are हाँ common. ये या And then if you want to buy a house or want to buy a car or want to go for any vacation, you या can just put. क्योंकि कभी इस और सोचा नहीं है ना, तो एकदम हाँ, it's माइंड में वो okay. क्लिक नहीं हो रहे हैं। I will send this sheet also. I have made in the Excel also. I have sent in the group as well. So I will be sending separately हाँ, मैंने also. चेक किए। हाँ. When we are having some example, some of the things, when we start doing, no, you will be getting some more ideas. So this is the first time if you are doing, just do it. ओके Maybe next time you can improve on it. ओके So it's not कि हाँ ओके first time में ही हमें perfect होना है, but it's good to start. So next, now when we have our goals, now we have to make them the smart goals. Just having goals, like we can have 10, 20, 50 goals. We want so many things, ओके but we need to make them smart. Smart means they need ओके to be specific. Okay, it should not be like कि मुझे कहीं तो घूमने जाना है, but it should be specific कि मुझे कहाँ घूमने जाना है, कितना उसके लिए मुझे पैसा चाहिएगा। मीजरेबल मतलब आपको क्वांटिफाई करना है उसको मॉनेटरी टर्म में।
या मतलब हाँ ठीक है मुझे मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है, अच्छा पढ़ाना है, एक गोल तो हो गया कि बच्चे की पढ़ाई करनी है, बट कितना अच्छा या कितना आपको उसके लिए फंड लगेगा, यू हैव टू हैव दैट नंबर। मतलब आज की डेट में अगर ठीक है मुझे अगर मान लो मेरे को चाहिए कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करे आईआईटी से, तो मुझे लगता है कि हाँ 4 लाख रुपए साल का खर्चा भी आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए चाहिए अभी इंजीनियरिंग कराना है, तो एजुकेशन फीस प्लस उनका हॉस्टल का खर्चा या जो भी ट्रैवल का खर्चा जो भी होगा उन सब मिला के मुझे लगता है कि मुझे बच्चे की एजुकेशन के लिए 16 लाख चाहिए। तो इस तरह से आपको उसको मीजरेबल बनाना है, स्पेसिफिक होना चाहिए कि पढ़ाई के लिए चाहिए, उसको मीजर भी होना चाहिए और अचीवेबल भी होना चाहिए। सपोज आपने लिख लिया कि नहीं मुझे तो भैया 2 करोड़ चाहिए अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, बट अभी करंट अर्निंग ही मतलब इन टोटल आप 50,000 ही कमा रहे हो, तो दिस इज मतलब यू कैन हैव चैलेंजिंग गोल्स बट नॉट अनरियलिस्टिक वन। मतलब it could be little stress because in future our earning will also grow, but it should be achievable because on that amount only we will start doing investment and all, so we can review and refine them later, but now whatever we can achieve, put that number. Okay, and then it should be relevant, it should matlab ensure your goal align with your overall financial priorities and life plans, and time bound, you have to assign a specific deadline or time to achieve your goal. Like for kids education, like for like after their 12 they will be going for the higher studies, so at the age of 18 they will be going there, so you have to write that number. So I will be showing the next sheet, from there you will get more clarity on that. So this is like creating a smart goals, this I have created for myself. Like in emergency fund, I need to have it immediately, and these are the high priority thing. In the last session, I think last to last session we had on why we need emergency, because in life anything can happen to anyone at any point of time. तो इट्स नॉट लाइक कि मेरा सारा पैसा मुझे भाई इक्विटी में ही डालना है, ग्रो ही करना है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना वो हमारे इमरजेंसी फंड में होने चाहिए मिनिमम। और अगर आपकी ईएमआईज भी हैं तो प्लस आपको 6 मंथ का ईएमआई अपना ऐड करना है, उतना फंड आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए कि आपको एक क्लिक पे मिल जाए। तो दिस गिव्स अस सो मच पीस ऑफ माइंड कि हाँ अगर कुछ होता भी है ना तो वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर नॉट वरीड कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, एंड सेकंड गोल इज शॉर्ट टर्म फॉर मी कि लाइक मतलब मुझे सेटअप करना है अपना ऑनलाइन बिजनेस, अपना वेबसाइट बनाना है और अपना कुछ कुछ तैयार करना है, तो उसके लिए मुझे ऑलमोस्ट मैंने अभी एस्टिमेट किया है, दिस इज नॉट अ क्लियर नंबर बट हाँ आई हैव एस्टिमेटेड कि हाँ मुझे 2 लाख रुपए के आसपास मुझे चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू भी मैंने इसमें कुछ ऐसे बढ़ाई नहीं है, क्योंकि अभी हाँ मुझे ठीक है कि अभी ही चाहिए, शॉर्ट टर्म ही है, तो वो ठीक है मुझे 2 लाख के आसपास चाहिए, जस्ट एस्टिमेटेड नंबर। एंड देन हाँ मुझे मेरे पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो मैंने पॉलिसी बाजार पे कुछ कुछ पॉलिसी कंपेयर किया, तो वो भी मुझे अभी लेना है, 50,000 का उनका आएगा, तो वो मैंने वो अमाउंट डाल दिया कि हाँ 50 लाख मुझे उसके लिए चाहिए। एंड देन जैसे मेरा बड़ा बेटा है 8 साल का है, 10 साल के बाद उसकी हायर एजुकेशन के लिए मुझे मैंने डाला है 16 लाख चाहिए, 4 साल की उसकी इंजीनियरिंग होगा, 4 साल के लिए मतलब मेरे हिसाब से कि हाँ ठीक है 4 4 लाख का 16 लाख हो गया, 16 लाख। तो पहले आपको ये करंट वैल्यू वाला कॉलम पूरा करना है कि अभी आज की डेट में अगर वो जाता है तो कितना पैसा आपको लगेगा। ठीक है, सेम जैसे मेरा छोटा बेटा है उसको 17 साल के बाद चाहिए होगा, पर उसके लिए अभी भी मतलब ठीक है अभी एक्चुअली दे विल डिसाइड देयर ओन व्हाट दे वांट टू डू, बट एज अ पेरेंट वी नीड टू प्रिपेयर एंड हैव एटलीस्ट सम फंड, वॉट एवर वी आर थिंकिंग कि हाँ मतलब मुझे इतना फंड तो अपने बच्चे के लिए क्रिएट करना है, तो इट कुड बी एनी नंबर टू यू, मतलब इट्स अप टू यू, आप जो भी नंबर पुट करना चाहो आप उसमें डाल दो। एंड देन रिटायरमेंट फंड, मतलब इसमें जैसे मैंने अभी एनुअल एक्सपेंसेस लिया है, मुझे चाहिए कि मतलब हाँ आज की डेट में जैसे कि अगर 1 लाख रुपए महीने मिलता है तो बहुत अच्छा मेरा रिटायरमेंट वाला लाइफ होगा। ठीक है, अभी तो हम केवल नंबर डाल रहे हैं, देन वी विल एडजस्ट देम ऑल्सो जब हम देखेंगे ना कि हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। और जैसे मेरा छोटा बेटा है उसके लिए भी मतलब 1.5 साल का ही है, तो मैंने 17 साल के बाद डाला है। बट यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं ना फ्यूचर वैल्यू में कितना फर्क आ जाता है, जैसे बड़े बेटे के लिए मुझे 10 साल के बाद 41 लाख, मतलब सेम 16 लाख ही फीस है, पर मुझे 41 लाख लगेगा। और छोटे बेटे के लिए मैंने एक्चुअली 10% इन्फ्लेशन लगाया है, उसके लिए मुझे 80 लाख लगेगा, सेम आज की डेट में 16 लाख चाहिए दोनों के लिए मुझे, पर इन फ्यूचर द अमाउंट विल चेंज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। हाँ मतलब जो महंगाई बढ़ती जा रही है ना उसकी वजह से कॉलेज का स्कूल का सारी चीजें बढ़ेंगी, तो वो कितना अमाउंट हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू में हम वो निकाल रहे हैं कि जब हमें जरूरत होगी उस पैसे की, आज की डेट में वो 16 लाख है, पर 10 साल के बाद वो तो 40 लाख हो जाएगा।
और 17 साल के बाद तो वो 80 लाख होने वाला है। तो मुझे 16 लाख के लिए तैयार नहीं होना है, मुझे ना 40 लाख और 80 लाख के लिए तैयार होना है। अगर आज की डेट में मैं ऐसा कॉलेज सोच रही हूँ अपने बच्चे के लिए जहाँ पे उसको 4 लाख रुपए साल का चाहिए, अगर मैं ऐसा एजुकेशन अपने बच्चे को देना चाह रही हूँ ना, तो उसके लिए सेम एजुकेशन के लिए मुझे 10 साल के बाद 40 लाख रुपए मेरे पास होना चाहिए, और दूसरे बेटे के लिए मतलब मेरे पास 80 लाख होना चाहिए। सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, मैं उसमें कुछ बढ़ा नहीं रही हूँ। तो ये जब हम नंबर्स करते हैं ना, तो वी गेट सो मच क्लैरिटी। एंड रिटायरमेंट के लिए अगर मुझे चाहिए कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए मिलता रहे, और मानो मेरा 60 पे मैं रिटायर होंगी, 30 साल के लिए मुझे चाहिए, तो ऑलमोस्ट मुझे 7 करोड़ का फंड लगेगा, तब मुझे 1 लाख रुपए महीने का मिलेगा। सो दीज नंबर टेल्स अस डिफरेंट स्टोरीज। तो फिर हमें रियलाइज होता है कि अच्छा हम कितने लेवल पे पहुंच पाएंगे, कितना और हमें बचाना पड़ेगा। दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन के हाउ टू प्लान फॉर दीज थिंग्स। पर आपको पहले ना ये सारा करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा भी क्लैरिटी नहीं है, पर आप एटलीस्ट स्टार्ट करो, पुट सम नंबर्स, और उनका फ्यूचर वैल्यू आप निकालो। तब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, ये फिर हम नंबर्स कभी भी चेंज कर सकते हैं, आप 10 का कभी 20 भी कर सकते हो, कभी 5 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, पहले करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि यार मतलब आज की डेट में भले ही मैं सोच रही हूँ कि 16 लाख रुपए लगेगा, पर मेरे छोटे वाले के टाइम में जब 17 साल बाद टाइम आएगा सेम एजुकेशन का, तो मुझे 80 लाख चाहिए होगा। तो कई बार ये नंबर्स ही हमारे दिमाग में नहीं आते हैं। तो सेम आपको सारी चीज का लगना है। जैसे अभी बच्चे की शादी का मैंने डाला, आजकल 50 लाख रुपए लगता है कि हाँ चलो शादी, अब सब ना डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो शाम 50 लाख डाला, तो अभी अगर जैसे 20 साल के बाद उसका शादी होगा, तो उसके लिए मुझे ना 1 करोड़ 60 लाख चाहिए। छोटे वाले के लिए भी सेम अमाउंट अगर 26 साल के बाद चाहिए, तो मुझे 2 करोड़ 27 लाख चाहिए। तो आज की डेट का तो मतलब आगे फ्यूचर में कितना पैसा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन कितना ज्यादा है, उसके हिसाब से ना हमें देखना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है आज की डेट में, उसके लिए मुझे अगर 2.5 करोड़ चाहिए, तो उस टाइम में 20 साल के बाद तो उतने पैसे की वैल्यू 8 करोड़ हो जाएगी। तो मुझे प्लान 2.5 करोड़ का नहीं करना है, मुझे 8 करोड़ का प्लान करना है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि बी क्लियर, हैव द स्मार्ट गोल। स्मार्ट का मतलब यही हो गया ना कि हमारे स्पेसिफिक हो गए, जैसे कि हमने जो फर्स्ट लाइन में लिखा, इमरजेंसी फंड चाहिए, बिजनेस सेटअप करना है, बच्चे की एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, शादी है। ठीक है, फिर देन टाइम बाउंड हो गया कि हमें कितने टाइम के बाद पैसा चाहिए, 1 साल के बाद चाहिए, 5 साल के बाद चाहिए, 10 साल के बाद चाहिए, 20 साल के बाद चाहिए। ठीक है, फिर हमने प्रायोरिटी सेट कर दिया उनका। तो वो रिलेवेंट है कि ये अच्छा, ये मेरे लिए हाई प्रायोरिटीज है, मतलब ये वाले के लिए तो मुझे पैसा पहले, जैसे मेरे जैसे फर्स्ट 6 गोल है ना, वो मेरे हाई प्रायोरिटी है। उनके लिए तो मतलब मुझे पैसा बचाना ही है उनके लिए, मतलब बाकी वाली चीजों के लिए मैं बाद में देखूंगी, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो मैं उनके लिए अभी प्लान करूंगी, या फिर फ्यूचर में मेरा अर्निंग बढ़ेगा तब मैं प्लान करूंगी। तो ये प्रायोरिटी डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम में हमारे पास इतना फंड नहीं हो सकता कि मतलब मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है, कुछ लोगों के पास हो सकता है, कि मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है कि उनके भाई सारी चीजों के लिए, उनकी नीड वांट्स एस्पिरेशन सबके लिए ही उनके पास एकदम से फंड अवेलेबल हो। तो वी नीड टू प्लान एट एवरी स्टेप। एंड देन हमने ये स्पेसिफिक बनाया गोल करंट वैल्यू डाल के कि हाँ मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इमरजेंसी में 10 लाख चाहिए, क्योंकि मेरे घर का ईएमआई भी चल रहा है। 6 महीने का अगर मैं ईएमआई लगाऊंगी तो 5 लाख हो गया। प्लस मुझे 5 लाख अलग से मेरे घर के एक्सपेंसेस के लिए चाहिए। बिजनेस के लिए मैंने लगाया 2 लाख मुझे चाहिए। तो इस तरह से आपको अपना लगाना है जो भी आप है। और ये मैं आपको एक और शीट दूंगी, ये फ्यूचर वैल्यू के लिए, आप ये नंबर डालोगे तो आपका खुद से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा उसमें। ठीक है, आप यहाँ नंबर चेंज करोगे तो आपका फ्यूचर वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो आपके पास एक क्लैरिटी आएगा कि ओके मुझे इन गोल के लिए इतना पैसा चाहिए। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि हाँ हमें कितना रिटर्न होना चाहिए हमारे पास, या हमें कितने का एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। एंड हाँ आप, और जो मैंने लास्ट क्लास में लास्ट मतलब बहुत पहले ही लिया था ये एक्सपेंस ट्रैकिंग एंड ऑल, तो हैव यू स्टार्टेड डूइंग वैशाली, आर यू डूइंग दैट? हेलो। हाँ वैशाली, आप कर रहे हो एक्सपेंस ट्रैकिंग? हाँ, एक्सपेंड वो कर रही हूँ मैं, पर अभी थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी खर्चा हो जाता है, तो उसका फिर कैसे मैनेज करें, वो थोड़ा वो रहता है। वो एक्स्ट्रा हमेशा होता है, बट व्हेन यू डू ना फॉर 1 ईयर आपको पता चलेगा कि वो एक्स्ट्रा ना एक्स्ट्रा नहीं होता है, वो हर साल ही आता है हमारे पास। पहले मुझे भी नहीं, लगता वो था बात कि हर, सही है, जैसे अभी देखो हॉस्पिटल का है, कभी हॉस्पिटल का है, वो थोड़ा अचानक से जिस पता नहीं कि हम कब बीमार हो गए कि कुछ भी ऐसे, ना तो तो वो हम उसमें उसके लिए थोड़ा हो इमरजेंसी जाए। फंड क्रिएट कर रहे हैं ना, उसके लिए हम इंश्योरेंस ले रहे हैं ना। नहीं नहीं, नॉर्मल जैसे कुछ नॉर्मल हुआ तो उसके लिए तो हम थोड़ा वो वाला जो
आपने बताया वो थोड़ा यूज कर सकते हैं हाँ नॉर्मली हाँ। जो होता है ना जैसे, तो उसका हाँ कैसे मैं करना है? समझ रही हूँ। पर आप अपने ना पूरे साल में देखोगे ना, तो कभी ना कभी बच्चे बीमार होते हैं, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ हाँ ना, तो आपको एक हाँ, साल ये में बात सही क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ इतना पैसा मेरा यहाँ जाता है। एक्चुअली ना वो हमें रैंडम लगता है, बट 98 हाँ 99% या एक्सपेंसेस हमारे ना फिक्स्ड ही होते हैं, अगर आप ईयर का देखोगे। ओके पहले मेरा भी ये ओके अंडरस्टैंडिंग था, मुझे लगता था कि यार इस बार तो हम बाहर घूमने जा रहे हैं इसलिए ज्यादा खर्चा हो गया, इस साल तो घर जा रहे हैं, अभी तो फेस्टिवल आ गया, अभी गिफ्ट दे दिया इसलिए ज्यादा खर्चा हो गया इस महीने में। और सब कुछ प्लान होता है, बच्चों की वेकेशन होती है तो अच्छा यहाँ का ये हो गया, बच्चों की क्लासेस करा दी इस महीने इस वजह से ज्यादा खर्चा हो गया। पर या वो रैंडम नहीं होते हैं, वो हमारे पहले से ही होते हैं कि हाँ, कि मेरा फोन है, जैसे कि ओके लगता है कभी के फोन खराब हो गया यार, अचानक से फोन का खर्चा आ गया। पर फोन का भी अचानक से नहीं होता है, मोस्टली हम 3 या 4 साल में फोन चेंज करते हैं, अगर घर में 4 लोग के पास फोन है तो हर साल एक फोन का खर्चा आने वाला है। ओके तो हाँ, धीमे धीमे आप करोगे तो आपको भी पता चलेगा। शिखा आप भी स्टार्ट करिए एक्सपेंस ट्रैकिंग करना, अगर आप नहीं करते हो। अगर आपको एक्सेल कंफर्टेबल नहीं है तो आप मनी मैनेजर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसके थ्रू करो। तो केवल ये हम मनी मैनेज केवल ना रिकॉर्ड इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि हमें बस सेविंग करनी है ज्यादा, वो एक पर्पस है, पर पहले पता होना ओके चाहिए। बहुत बार ना वो रेंडमनेस हमें लगती है कि यार, मतलब एक्सपेंसेस में रेंडमनेस बहुत है यार, पता ही नहीं चल रहा अभी ये इस महीने ये आ गया। मुझे एक्चुअली पहले बहुत लगता था कि अभी कोर्स ले लिया शायद इसलिए हुआ, इस बार मैंने ना ये सीएफपी का ये वाले एग्जाम का पैसा चला गया इसलिए ज्यादा खर्चा हो गया, अभी यहाँ चले गए ये, अभी जैसे मान लो आप बैंगलोर आओगे आपको लगेगा कि यार ये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, बैंगलोर का टिकट हो गया, ये हो गया। पर हर साल कुछ ना कुछ आएगा। बट एक बार आप ये सारा एक्सपेंस ट्रैकिंग करोगे, आपके पास पूरा 1 ईयर का डेटा होगा ना, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, बहुत श्योरिटी आएगा, आपको बहुत क्लैरिटी आएगा कि आपका अच्छा कैसे एक्सपेंसेस का पैटर्न है। हमारे स्पेंडिंग पैटर्न्स होते हैं, तो आपको अपना पैटर्न भी समझ में आएगा, हमारा बिहेवियर भी समझ में आएगा। तो ये बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा जरूरी है। ओके, तो ये ट्रैक कैसे करना है? एक्सेल में सारे जितने हाँ भी मैंने है वो? एक्सेल में आपको हाँ भी मैं भेजती हूँ, मैंने लास्ट टू लास्ट सेशन में शेयर किया था एक्सपेंस ट्रैकिंग शीट। आप अगर एक्सेल के ओके साथ कंफर्टेबल हो आप उसमें करिए, नहीं तो फिर आप मनी मैनेजर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उससे कर सकते हो। ओके। तो लेट मी शेयर हियर ओनली। अच्छा पहले ये बस खत्म कर देती हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, क्लियर हुआ आपको? हाँ क्लियर है। फ्यूचर वैल्यू कैसे काउंट करेंगे हम लोग? ये देखो कैलकुलेटर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे रहते हैं, आप वहां जाके कर सकते हो, जैसे कि मैं एक दिखाती हूँ आपको। ओके हम्म, जैसे कि एक मनी फार्मिंग वेबसाइट है, ये अच्छा है। ये एक फेलो मेरे ही सीएफपी हैं उनका ही है। वो उनको 15 साल हो गया करते करते फाइनेंशियल प्लानिंग ना। तो इसमें आप डाल सकते हो कि अपना नाम डालो, बच्चे का नाम डालो, एज आपको जितना भी है आप कम ज्यादा ऐसे करके कर सकते हो, कितने साल में हायर एजुकेशन होगा आप उसके हिसाब से ये यहाँ कर सकते हो। आप कॉस्ट यहाँ डाल ओके सकते हो, इन्फ्लेशन आपको कितना लेना है वो आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है। ओके, सब अभी मैन अगर सब मैन्युअली है इसमें, हाँ मैन्युअली इसमें आप करना ऐसे है कर सब? सकते हो। हाँ फिर आप जैसे कैलकुलेट करोगे ना, पर इसमें फिर आपको एक बार अपना डिटेल डालना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैंने डिटेल डाला ना, तो फिर मेरे पास ये आपको मेल भेजेंगे फिर। इसमें ओके क्या सीधे नहीं आ रहा है, या फिर आप वैल्यू रिसर्च से कर सकते हो, वैल्यू रिसर्च में कुछ कुछ रहते हैं ना कैलकुलेटर। एसआईपी वाले मैंने ओके देखे हैं, गोल वाला मुझे देखना पड़ेगा उसमें है कि नहीं है। तो ओके इसमें भी आप डाल सकते हो कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग भी आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको नया कितना करना है इन्वेस्टमेंट। तो ये नेक्स्ट वाले लेवल में ज्यादा काम में आएगा। ओके। अभी तो जो सिंपल है ना, मैं मैं बोल एक्सेल। रही हूँ, एक बार आप वो जो एक्सपेंसिव ट्रेकर वाली वो सब ब्लैंक सीट एक बार भेज दोगे मुझे एक बार फिर से? एक्सपेंस एक्सपेंस ट्रैकर वाला, ओके मैं भी यहाँ यहीं पर ही डाल देती हूँ मैं आप दोनों के लिए। शिखा को भी चाहिए ना, शिखा हाँ को मैं दे यहीं देंगे। पर ही डाल देती हूँ एक बार ना चैट में ना। तो उसमें अपने को एक अगर हम आपने जो एक्सपेंसिव टेकर वाला दिया है उसमें एक मंथ का लिखा है, इसमें एवरी मंथ का ही लिखना है? अलग हाँ अलग सीट बना के क्या उसमें ही नहीं नहीं, कंसीडर उसी में ही करो? आता जाएगा, और फिर जो सेकंड वाला उसका सीट है ना, उसमें वो अपने आप एनालाइज होता जाएगा। उसका वही ओके फायदा है, उसमें आप करोगे ना तो फिर आपका वो पूरा पूरा साल के बाद ना आपको बहुत अच्छा एनालिसिस मिलेगा आपका। ठीक है। ये यही था।
ठीक है, आज का वैसे ये हो गया हमारा। लेट मी जस्ट चेक। यही था वैसे गोल सेटिंग का मेनली हमें। ये हमें स्मार्ट गोल बनाना है, उसके बाद वही हमें कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है हम उस पे जाएंगे। ओके, ये मैं अभी बना रही थी एक्चुअली इसको पूरा। मैंने अपने लिए वैसे ही बना दिया था सीधे ही फॉर्मूला डाल के, पर मैं सोची थी कि हाँ आप लोग के लिए इसमें, जैसे कि मैं ये वाला टूल शेयर करूंगी एक्सेल वाला, इसमें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आपका जो भी गोल है वो डालना है आपको। यहाँ पे वैल्यू डालना है, यहाँ पर टाइम डालना है, कितने टाइम में है। यहाँ पर आपको लगता है कितने परसेंट से बढ़ेगा, 10% से बढ़ रही है एजुकेशन या 5% से बढ़ रही है, तो आप उस तरह से यहाँ पे डाल दोगे। जैसे मेरे को लगता है कि एजुकेशन की यहाँ वही सिटी में 10% से बढ़ जा रहा है खर्चा, तो मैं 10% डाल दूंगी। तो आप यहाँ पे नंबर चेंज करोगे ना, तो आपका ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा। मैं इसको भी थोड़ा सा और ठीक एडिट है कर भाई। फिर आपके पास भेजूंगी, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। आपको कहीं वेबसाइट पे किसी पे कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बस ओके। इसमें थोड़ा मेरा 10 मिनट का काम और है, तो मैं वो करके ना फिर आपको भेज दूंगी ये वाला टूल। ये मैंने बस पीपीटी में डाल लिया था, हर बार मैं एक्सेल खोलती थी, मैंने कहा चलो इस बार इसमें ही डाल देते हो। सो ओके। देन हाँ, बस लास्ट में ये था कि गोल्स का हमने एक बार बना लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि बस वो फिक्स हो गए। तो वी हैव टू रिव्यू अवर प्रोग्रेस, कि कितना हमने, मतलब उससे हमें असेस भी करना है कि हमने कितना प्रोग्रेस किया, कितना स्टेप हम आगे बढ़े। उसमें एडजस्टमेंट भी हमें करना है जब जरूरत पड़ेगा। और उनसे हमें डरना नहीं है, उनसे हमें मोटिवेट होना है कि हाँ। और जब हम ना कुछ अचीव करते हैं कोई गोल्स, तो हमें ना हैप्पी भी होना है कि हाँ वी हैव टू सेलिब्रेट अवर गोल्स। एंड फाइनेंशियल गोल इज अ टारगेट दैट गाइड योर डिसीजन involving saving, spending, earning and investing. एक्चुअली जब आप ये प्रायोरिटाइजेशन शीट बनाओगे, स्मार्ट गोल्स बनाओगे, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करो। जैसे ना हम लोग का मोस्टली क्वेश्चन होता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें पैसा। तो जब आपके शॉर्ट टर्म गोल के लिए उसको आपको कहीं इक्विटी में या कहीं नहीं डालना है, उसको आपको लिक्विड फंड में ही रखना है, बैंक में ही रखना है। जो आपका मीडियम टर्म का है उसको आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, आप बैलेंस फंड वगैरह में डाल सकते हो। जो लॉन्ग टर्म का है उसको आपको भी 7 साल 10 साल 15 साल बाद के लिए चाहिए, तो आप उसको इक्विटी मार्केट में डाल सकते हो। तो उस तरह से ना हमें जब ये हम करेंगे ना, तो हमें वो भी क्लैरिटी आएगा कि हम कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करें। तो दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अल्टीमेट कैलकुलेशन। जब हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमें हमेशा रहेगा कि यार हम सारा पैसा वहां क्यों नहीं डाल रहे हैं। अगर इक्विटी में 15% रिटर्न मिल रहा है, तो मैं सारा पैसा वहां पे क्यों नहीं डालूं, मैं 5% या 10% क्यों लूं। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो आफ्टर आई थिंक 1-2 सेशन मैं थोड़ा थोड़ा इक्विटी के बारे में भी बताना स्टार्ट करूंगी। पहले मैं आई थिंक ग्रुप में भी पूछूंगी हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड। तो थैंक यू वैशाली एंड थैंक यू शिखा। So I hope this was useful. And for Shikha, I will share this financial organizer tool as well. Okay, ma'am. You can call me Shweta. थैंक यू। I'm not used to listening Okay. to Shweta. Okay. Okay. एक्चुअली वेरी यूजफुल है हमारे लिए। तो इतना पहले तो इतना मुझे नॉलेज नहीं था, जैसे जैसे आपका मैंने देखा तो काफी हम्म सारा नॉलेज आया। हम तो अभी हाउस वाइफ है, ठीक है फिलहाल, पर हम हमारा हस्बैंड को ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं ना, सब हमको अवेयरनेस हो तो। यस, अदरवाइज हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हम अपना भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें दोनों ही का सपोर्ट हो रहा है। हम्म, जो मैंने ये हाँ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजर टूल भेजा है, शिखा आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा सिस्टम हैंग हो गया। आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आप ऑनलाइन जो बोल रहे हैं मनी मैनेजर वाली जो ऐप है, उसमें हम डेली का एक्सपेंसिव ट्रैक कर सकते हैं उसमें क्या? मनी मैनेजर में डेली का कर सकते हो, पर एक्सेल में अगर कर आप कर सकते सकते हो, जो मैंने भेजा है ना वो बेस्ट है। उससे आपको ना पूरे साल का अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा कि कितना परसेंट आपका हुआ, कितना परसेंट आपने खर्चा किया, कितना बचाया, कितना आपका हैं। फिक्स अच्छा। एक्सपेंसेस है। बाकी मैं भी हाँ पहले मनी मैनेजर यूज कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ, अभी मेरा दोनों पे चल रहा है। अभी मनी मैनेजर पे भी करती हूँ, फिर एक साथ बैठ के एक्सेल में मेरा डेली मेरा नहीं होता ट्रांजेक्शन है। कैसा रहता है, रियल के कभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रांजेक्शन रहता है? जैसे आप बता रहे हैं आप तो ऑनलाइन ही करते हैं ना सब, तो ट्रैक इजीली हो जाता है।
तो नहीं ऑफलाइन का ऑनलाइन ही, कैसे ऑफलाइन ही मिलता है? होता है ये जो मैंने आपको दिया है शीट, वो ऑफलाइन ही है ना, ऑनलाइन नहीं है वो। आप कभी भी खोल सकते हो अपने सिस्टम पे, बस लैपटॉप पे वो खोलना पड़ेगा आपको, वो है। अच्छा, नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही थी, जैसे आप एक बार नहीं शेयर कर रहे थे कि आप मेरा जो भी एक्सपेंसिव का जो मैं पे कर रही हूँ, जैसे तो सब ऑनलाइन मीन्स ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, हाँ हाँ। तो मेरा कैसा ऑनलाइन भी होता है ना ऑफलाइन भी होता है, हम्म। तो उसका कैसे फिर करना है ऐसे मीन्स ऑफलाइन नहीं तो जैसे कैश उससे अपने कुछ हाथ फर्क में? नहीं है, आपकी मर्जी है। इसमें देखो एक ऑप्शन भी होता है, जैसे मनी मैनेजर ऐप में एक हो रहता है ऑप्शन कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, वो भी आप डाल सकते हो, कार्ड से कर रहे हो, यूपीआई से कर रहे हो, कैश से कर रहे हो। तो वो भी एक ओके, एनालिसिस का पार्ट हो जाता है कि कितना परसेंट, अगर आपको ये देखना है कि मैंने कितना परसेंट कैश में किया, कितना परसेंट ऑनलाइन किया, अगर आप चाहते हो वो करना तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक, मुझे ये एक्सेल शीट में ही करना है, तो डेली बेस में मुझे वो ऑफलाइन जैसे मैंने कुछ भी पे किया है हम्म फिजिकली मीन्स, तो वो हम्म। मुझे लिखना ही पड़ेगा उसमें ऐसे ही? हाँ हाँ, बस उसमें तो बस लिखना है, आप ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो, मतलब खर्चा हो रहा है ना, बस आपको खर्चा लिखना है, जो भी आपने खर्चा किया वो लिखना है आपको। ओके हाँ, उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन से मतलब नहीं है कि आपने ऑनलाइन, पैसा तो पैसा ही है ना, ऑनलाइन भी है तो वो भी हमारा पैसा ही है, ऑफलाइन भी है तो भी पैसा है, सेम ही पैसा है नहीं, वो। ऑनलाइन इजी रहता है ना, ऑनलाइन इजी रहता है, ऑफलाइन अपने सुबह से लेकर शाम तक अपने कहाँ कहाँ पे करा, फिर हमने को रिमाइंड करना पड़ता है हाँ तो सारी फिर आप चीजों ऐसा का। करो ना, जैसे कि ठीक है आपने मान लो सूजी का खर्चा किया, दही मंगाया, दूध मंगाया, आप एक साथ सारे खर्चे, जैसे मान लो आपके दिन में 200 रुपए खर्च हो गए, तो आप एक्सेल में एक एंट्री कर दो, 200 रुपए मैंने किचन और ये सामान पे खर्चा किया। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार ओके डालना है कि 50 रुपए का मैं दूध लेके आई, 100 रुपए का पनीर लेके आई, ऐसे भी जरूरी नहीं ओके आपको ऐसे लिखना है, आप एक साथ डाल दो कि मेरा हाँ दिन का 100 200 रुपए खर्चा हो गया किचन का, या आज मैंने ओके 1000 रुपए का ये वाला खर्चा हो गया, आप ऐसे सीधा भी डाल सकते हो, मतलब उतना भी नहीं कि आपको एक एक ओके। खर्चा ही डालना है, मतलब बेस्ट होता है बट। मैं है ना ऑफलाइन जो आप ऑफलाइन ऐसे कर दीजिए, जैसे नोटबुक रहती थी तो उसमें सब खर्च खर्च ऐसे लिखती थी, जैसे आप ही हाँ बताया हाँ। ना आपने, उई, वो और आपने टाइम। अभी एक आइडिया दिया ना, जैसे टोटल लिख देना है, जैसे किचन का ही हाँ, हुआ तो किचन का लिख दो तो इजीली क्योंकि रहेगा अगर ना हम ना ये। ज्यादा प्रेशराइज करेंगे ना तो एक पॉइंट के बाद हम, अभी तो मोटिवेटेड है, फिर 2 महीने के बाद हम छोड़ ही देंगे कि बहुत ज्यादा हो गया, अभी एक एक पैसा नहीं कर सकती। नहीं तो आपको नोटबुक में ओके आदत है तो आप अपने नोटबुक में सारा लिखो, दिन के एंड में जोड़ लो कि कितना टोटल मैंने खर्चा किया, फिर आप डाल दो। पर ना कैटेगरी वाइज करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे आपका किचन के सामान का मान लो आपको 200 खर्चा हुआ तो आपने 200 किचन का डाल दिया, फिर मान लो आपके हस्बैंड ने पेट्रोल का खर्चा किया तो आप 500 रुपए पेट्रोल का करके अलग हाँ, से वो डालो इजी रहेगा, कैटेगरी में, तो वो कैटेगरी कैटेगरी का वाइज पता डालेंगे चलेगा। तो। हाँ, जैसे किचन का ही है तो आपको एक ही किचन का डालने की जरूरत नहीं है, पर आप एक साथ डाल सकते हो किचन का सारा, कि इतना खर्चा हुआ। पर हाँ, कैटेगरी का करोगे ना तो वो बाद में पता चलता है कि मेरा अच्छा किचन का खर्चा 5,000 है, मेरे पति का अलग 4,000 खर्चा है, तो वो उनसे हमें पता चलता है वो। अगर हम कैटेगरी वाइज डालेंगे ना तो उससे हमें ज्यादा क्लैरिटी आता है, एनालिसिस में फायदा होता है। खर्चा तो सारा आपका आ ओके जाएगा, पर बाद के लिए वो अच्छा रहता है हमें पता करने के लिए कि कहाँ ज्यादा खर्चा हो रहा है। अभी ओके इनका ओके, थैंक यू एग्जाम सो चल रहा है ना मच। तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, आज तो एग्जाम प्रिपरेशन लीव है। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू शिखा एंड वैशाली, so let me take one pic, then we will leave. थैंक यू। Just 1 minute. This shit थोड़ा साइड बाबा, नहीं हो गई बाबा, 1 सेकंड रुक जा। रुक जा बाबा। थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर। एंड शिखा एंड वैशाली आप करने के बाद मुझे फिर से एक बार भेजिए दिस टाइम। हाँ, लास्ट टाइम मैं फॉलो ओके अप नहीं कर पाई थी, इस टाइम आई विल डू द ओके फॉलो अप। जो भी ना सारा काम करेगा ओके आई विल डू वन ऑन वन कॉल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड बेटर, नेक्स्ट सेशन के बाद ना वो भी करेंगे। ओके ओके या, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर। ओके, थैंक यू श्वेता।